हेलो गाइस, दिस इज़ सौरभ कुमार। वेलकम टू माय चैनल एस्पिरेशन टू अचीवमेंट। सो आज हम IBPS RRB PO का प्री देने जा रहे हैं। ठीक है, मॉक नंबर 1 अड्डा 247 पर ये अवेलेबल है। आप इसके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे इस पर। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइम मैंने देख लिया, लगभग 3:25 हो रहे हैं आई थिंक। शायद से 20 हो रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर किसी वक्त टाइम का इशू हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको जल्दी से। Okay, 8 persons has sit around a square table such that 4 of them sit at the corner and remaining 4 sit at the middle of the table. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। The person sit at the corner of the table face away from the center. And the person sit at the middle of the table face towards the center. G sits second to the right of B. G sits second to the right of B. 2 persons sit between G and A who does not sit adjacent to B. The number of persons sit between A and G is same as the number of persons sit between G and H. E sits second to the right of C. Who does not sit at the middle side of the table. F faces the one who sits to the immediate left of H. F faces the one who sits immediate left of H. ये कैसे पॉसिबल होगा अब? F faces the one who sits to the immediate left of H. H के immediate left में ये है। ठीक है, ये हो गया। शुक्र है यार, डरा ही डाला था। How many persons sit between F and E when counted from the right of E? 1 2 3 4. Which among the following statement is true? A sits adjacent to C. A sits adjacent to C गलत है। F faces E गलत है। No one sit between G and D, ये ठीक है। Or of the following, okay, A D C H. A D C और H और E. Which among the following pair of persons are immediate neighbors? AC, FD, CH, BE. Who among the following persons sits second to the left of the one who sits opposite to E? H. ये बाद में देखते हैं। गैदरिंग 7 1 20 8 5 18 9 14 7। दोनों डायरेक्शंस में 8 9 10 11 12 13 14 15। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 9 10 11 12 13 नहीं 6 7 8 9 6 7 8 19 20 21 19 20 10 11 12 13 14 15 10 11 15 16 17 18 19 20 21 15 7 8 9 10 11 12 13 14 15 सिर्फ दो ही है। ये क्या है? सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन अ रो ऑल ऑफ देम फेसिंग नॉर्थ। बढ़िया है। 5 पर्सन सिट बिटवीन C एंड H। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। B sits fourth to the left of C. B sits fourth to the left of C. 2 persons sit between B and D who does not sit adjacent to C.
The number of persons sit between B and C is one more than the number of persons sit between A and D. Sorry. The number of person between B and C is one more than the number of persons sit between A and D. और B और C में जितने हैं ये एक ज़्यादा है जितने कितने हैं A और D में। इस केस में तो 3 है मतलब 2 होंगे तो A यहीं आएगा। फिर इस केस में 1 2 3 है तो 2 होंगे। इस केस में भी A यहीं आएगा। G sits 2 places away from H. G sits at one of the extreme end. ये गया। फिर the number of persons sit to the right of G okay is 2 less than the number of persons sit to the left of A। ठीक है। F sits exactly between C and H। 1 2 3 1 2 कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 हैं टोटल। 4 of the following 5 are okay। FH 2 यानी है AD इनमें भी 2 हैं। CF इनमें भी 2 हैं। HG इनमें 1 है। DB कौन सी ट्रू है मोर देन 3% सेट टू द लेफ्ट ऑफ बी यही है। बी सेट टू द लेफ्ट ऑफ जी ठीक है। जी इवन नंबर ऑफ पर्सन सेट बिटवीन ए एंड बी ओनली फर्स्ट एंड बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू जी 1 2 3 1 2 3 4 फिफ्थ टू द लेफ्ट। The number of persons sit between B and F is same as the number of persons sit between 1 2 3 4 5 6 A and B 1 2 3 4 5 नहीं। H एंड D कभी भी नहीं। G एंड A हो ही नहीं सकता। C एंड D 1 2 3 4 5 6। ये देखते हैं ओनली a few rain is water all water is sea no sea drops some rain is not drops कुछ rain drops नहीं है। all sea being rain is a possibility पूरी की पूरी सी all sea being rain नहीं हो सकती यार। ओनली हॉट इज कोल्ड ऑल कोल्ड इज हॉट और इस पर लगी रेस्ट्रिक्शन फ्रॉम हॉट इज समर ओनली अ फ्यू समर इज विंटर नो कोल्ड इज विंटर ऑल समर कैन बी विंटर ऑल फ्रूट्स आर ग्रेप्स ओनली अ फ्यू फ्रूट्स इज मैंगो ऑल फ्रूट्स आर ग्रेप्स ओनली अ फ्यू फ्रूट्स इज मैंगो नो एप्पल इज मैंगो all grapes being mango is a possibility all grapes some fruits is not apple some fruits is not apple नहीं बोल सकते। only a few ring is bangle no bangle earrings some earrings are pen पेन है ना पेन कहाँ गया। no ring is earring some ring is earring इधर हो रहे हैं। some days are week only a few days are year all months are year some month is not week all week can never be year ये बाद में देखते हैं। ये देखते हैं एस से बी देखना है ना एस से बी गलत है ए से बी भी गलत है और ये इधर और आ जाएगा। डी से जेड देखना है ना डी से गए हम पी से गए जेड पहला तो ठीक है। यू से एन देखना है ना यू से एन यू से गए पी
पहले ही है बस, एक्स से वाई देखना है, एक्स से वाई गलत है, बी से क्यू देखना है, बी से क्यू, ओ से टी देखना है ना, ओ से टी, ओ से, ओ से टी कैसे देख सकते हैं, ओ से वहाँ पर जाएंगे, एफ सी एफ एच, यहाँ पर कुछ भी एच है ना, ओ से एच, एच से टी, पहला तो ठीक है, जे से एफ देखना है, जे से एफ, जे से एच, एच से एफ, दोनों ही ठीक है, बड़े ही बारीक दिए गए हैं इनके। फिर से टाइम रुक गया, कैस नहीं, ठीक है वही ठीक है, चल गया। 8 पर्सन है, अटेंड डिफरेंट मंथ्स, 8 पर्सन है, क्या बोल रहे हैं, 10 क्लासेस ऑन डिफरेंट मंथ्स, मार्च अप्रैल अगस्त नवंबर, मार्च अप्रैल अगस्त नवंबर 13 और 16, person attend the classes between A and G. You attend the class in month having odd number of days. 1 2 G, 1 2 G, अगर मैं ए को यहाँ रखता हूँ तो 1 2 G कहीं भी आ सकता है, अगर यहाँ रखता हूँ तो 1 2 G, 4 प्रोजेक्शंस बनेंगी टोटल। G attend class after A. D attends the class between A and G on an odd number. E attends the class 3 persons after D. The number of person attend the class after E is 1 less than the number of person before B. 1 2 1 2 3, ये तो गया 1 2 1 2 3, B 1 1 2, ये भी गया, यही बचा है, इसको भी चेक करना है। F attends the class before C. F attends the class before C on the same number date. F attends the class before C, ठीक है। Among the following person attend the dance class in November, C and H. How many person attend the class between H and D? 1 2 3 4, H and D पूछा गया ना, 1 2 3 4, और of the following, okay, F D G C H, F D G C, कौन सा ट्रू है? G attends the class before A, गलत है ये। More than 3% attend the class after B, more than 3% attends the class after B, ठीक है। दूसरा, D attends the class in the month having even number of days, सेकेंड एंड थर्ड ठीक है। If A is related to B, the similar way E is related to H, then G के साथ कौन रिलेटेड करता है? C। आगे क्या बोला गया है कि पॉइंट A is 8 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट G, पॉइंट A is 8 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट G, which is 5 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट H. Point C is 10 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट A. And 15 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट E.
point B is 7 meter to the south of point H and 9 meter to the east of point D. Point F is 11 meter to the south of point D. In which direction is point C with respect to F? Northeast. What is the shortest distance between point A and E? What is the shortest distance between point A and E? तो 225 और 100, 325 और मैं 3 से 3 2 5 5 10 तो 5 से कर सकते हैं ना 5. What is the shortest distance between point A and E? 10 ये है यार, 15 ये है. 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225. 10 का 100, 325 है. अगर मैं इसको 25 से करूँगा डिवाइड, 25 से कम 25, 25 दिया 75. एक मिनट. हाँ सही है. Which among the following is true? Total distance between point G to F is less than 35. G to F 5 7 12 9 21 और 11 32. ठीक है. पहला शॉर्टेस्ट में B एंड E सेम एज G एंड H. B और E में जितना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, कितना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर, उतना ही G और H में है. ठीक है. ये भी पॉइंट A इज नॉर्थ वेस्ट ऑफ F. ये गलत है. 4 ऑफ द 5. ओके. D A G C. ठीक है. समझ गया. एफ एच ओके है. ई जी गलत हो गया ना. डी सी. एक मिनट में टाइम देख लूँ कितने पे स्टार्ट किया था. 3:20 पर किया था ना. 3:38. चलो 18 मिनट सही चल रहा है टाइम. तो 7% से पी क्यू आर एस टी यू वी. Set in a linear row face north direction, each of them likes different color. थोड़ा सा बाद में देखें इसको, ज़्यादा लंबा ना हो जाए. ओके. तो यही बचा है ना अब. ये कौन सा है? ये पहले मदर इन लॉ वाला कर लेते हैं. P इज मदर इन लॉ ऑफ T. छोटा लिखना है यार, अभी पेज है नहीं. V सिस्टर इन लॉ ऑफ T. V सिस्टर इन लॉ ऑफ T एंड वाइस वर्सा. ओके समझ गया. V इज अनमैरिड. ठीक है. U इज ग्रैंड चाइल्ड ऑफ M. U is grandchild of M and the nephew of V. U is grandchild of M, the nephew of V, who has only one sibling. Okay. M is not parent of T. ठीक है. S is aunt of V. S जो है वो aunt है V की. S is aunt of V. P has no sibling. तो यहाँ आएगी ना S. S is aunt of V. P has no sibling. Q is child of R. Who is sibling of V? Okay. Q is child of R. Gender of U and Q is different. लेकिन U और Q का तो बोला भी नहीं गया ना कहीं पर. U इज ग्रैंड चाइल्ड बोला गया है. M इज नॉट पेरेंट ऑफ T. M T का पेरेंट नहीं है. बस ठीक है. नहीं बन रहा है. इफ Q इज मैरिड टू B. ओके. इफ Q इज मैरिड टू B देन हाउ इज B रिलेटेड टू T? Q इज मैरिड टू B यार. एक मिनट. कहीं तो बोला गया P इज मदर इन लॉ ऑफ T. ठीक है. V is sister in law of T and vice versa. V is unmarried. U is grandchild of M.
ठीक है, एंड नेफ्यू ऑफ वी। ओके, यहाँ बोला गया था ना, अगर क्यू की शादी हो गई बी से तो ये तो फिर हस्बैंड होगा इसका, तो वो टी का क्या लगेगा, सन इन लॉ, दामाद। इफ एम एंड पी आर ओल्डर देन एस, ओके, देन हाउ मेनी पर्सन्स आर यंगर देन एस। 1 2 3 4 5 6। If M and P are older than S, then how many persons are younger than S? तो 3 होंगे आई थिंक, ये जनरेशन्स की बात कर रहे हैं। Who among the following is grandchild of P? U and Q. Or of the following S P U T V. S P U V T, U है, ये मेल है ना U। अब इनको छोड़ते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी पर आते हैं, ये बाद में देखेंगे, पहले छोटे देख लेते हैं। ये ग्राफ वाला है ना, द लाइन ग्राफ। भाई साहब इतने लाइनें दी गई हैं। टोटल प्रोडक्शन इन मार्च, टोटल डिमांड, टोटल इंक्रीमेंट, बाद में देखेंगे इसको। प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस, सॉरी प्लस प्लस है ना, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये 3 और 2, ये भी 3 और 2 नहीं, प्लस माइनस माइनस प्लस होगा ना, क्या कर रहा हूँ, 3 और 2। x less than is equal, x less than y। अब ये क्या है, जल्दी आ जा, शो हो जा भाई जल्दी। हाँ, प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस माइनस माइनस, 42 से 7 और 6, 11 और 8, सॉरी 11 और 7 होगा ना। तो इस केस में तो x ग्रेटर देन इक्वल टू y लिख दें फिर। प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस 11 और 9, लेकिन ये आएगा 22 और 18। ये कितना आएगा, 28 और 2 कितना होता है, 56, 7 और 8, x लेस देन वाई, माइनस प्लस 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 माइनस प्लस प्लस प्लस, ऊपर वाले को 2 से, नीचे वाले को 5 से, 60 और 5 300, 20 और 15 40 और 30, ये क्या है, 12 और 7, 3 और 4 ना, 15 और 20, ग्रेटर देन वाई होगा। रॉन्ग नंबर सीरीज भाई साहब, इस पर करते हैं इसको, पेजेस आगे कम है। ये तो प्लस से ही चेक करनी है लगता है। 6 में से 4 गया 2, 3 में से 1 गया 2, 22 47, ठीक है ठीक है, ये गलत लग रहा है ना, 22, 12 में से 6 गया 6, 22 में से 14 गया 8, 232 गलत है। ये भी मल्टीप्लाई वाला है, 23 प्लस 17 प्लस 19, 23 29, मेरे हिसाब से प्राइम नंबर चल रहे थे सभी के सभी, ये कहाँ से आ गया, ये तो मल्टीप्लाई लग रहा है ना। अगर ये मल्टीप्लाई है, 4 एकम 4 माइनस 1, 3 चौके 12 प्लस 0, 4 9 36, 4 3 12 और
ये भी ठीक है। तीन गलत है। प्लस के 4, ये 9 में से 2 गया 7, 27, 15 में से 9 गया 6, 16, ठीक है। 25, 216, 9 में से 6 गया 3, 7 में से 1 गया 6, 163। तो ये लास्ट वाला ही गलत लग रहा है यार। एक मिनट, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का क्यूब, ये 4 का स्क्वायर, यहाँ पर 5 का क्यूब आना चाहिए था ना। 300 गलत है फिर, क्योंकि 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब होना चाहिए। एक मिनट, 5 का ही क्यूब है यहाँ पर यार, 125 है। यहाँ कौन सा 200 दिए गए हैं, ठीक है। ये तो ठीक है, 200 मतलब 5 का क्यूब है, 6 का स्क्वायर आना चाहिए था। तो ये 516 गलत हुआ ना फिर। ये भी प्लस लग रहा है ना। ये कितना है, 23, ये 14 में से 8, 38, 51, 62, 7, 80, 15, 13, 11, 9, यहाँ पर कितना होना चाहिए था, 9 2 11 2 13 15 और 7 होना चाहिए था। लास्ट वाला गलत है, 328। ओके, ये फॉलोइंग टेबल वाला प्रॉब्लम, इसे खाली पेज पर करना पड़ेगा। यहाँ हो सकता है टोटल एम्प्लॉयज़ परसेंटेज ऑफ नॉन टेक एम्प्लॉयज़। ओके, तो आसान ही है। तो ABCDE टोटल टेक और नॉन टेक, यहाँ 2000 आ गया, 2500, 3000, 1700, 2800। टेक 40% है, मतलब कितने होंगे यहाँ पर, अगर यहाँ 1000 होता तो 400 होने थे, 800 हैं, 1200। यहाँ 60% है ना। 25 का कितने होते हैं, 150, मतलब 1500 है। 30%, 30 का जीरो अगर मैं निकाल दूँ, 2 जीरो 3 3, 900 है। यहाँ पर 2800, 17, 28, 17 8 136, 17 दूना 34 और 13 कितने होते हैं, 47। माय गॉड, आई मेड अ मिस्टेक। यहाँ पर नॉन टेक आएगा, यहाँ पर टेक आएगा ना। बच गया भाई, बहुत काम खराब हो जाता नहीं तो। 7 3/4, 2800, ये 7 तो 2100 होगा फिर, नॉन टेक ना। Find the difference between total tech employees in A and D together। टेक एम्प्लॉयज बोला गया ना, ए और डी टुगेदर। तो ये 1200 और 1300, 2524। एंड टोटल टेक एम्प्लॉयज इन बी एंड डी, बी और ये 1700, 824। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल टेक एम्प्लॉयज इन ए एंड डी टुगेदर। ए और डी, 1200 और 1300 कितना होता है, 2500 ही होता है। 2500 और 2524, ठीक है। और ये एंड
टू द टोटल टेक एम्प्लॉयज इन बी एंड डी 1700। यहाँ पर किसी में तो मैंने मिस्टेक की है लगता है। पहले निकालते हैं 1700 का 28%। 7 अट्ठे 56, 7 दूनी 14 और 5 19 और 28। ये तो ठीक है 476। देखा 1224 आएगा यहाँ पर। इन नॉन टेक एम्प्लॉयज इन सी। ओके, सी के नॉन टेक एम्प्लॉयज 900 है। रेशो ऑफ मेल टू फीमेल कितनी है? 7:8। 15 शी का 90 60। तो फिर क्या पूछा गया? फाइंड द नंबर ऑफ नॉन टेक फीमेल एम्प्लॉयज इन सी। 480 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल एम्प्लॉयज इन ए? 2000, 24% है। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ टेक एम्प्लॉयज इन ए सी एंड डी टुगेदर। ए सी और डी, ठीक है। 1200 और 2100 3300, 3300 और 1200 4500 24। 3 पर 15 आ जाएगा 1508। इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल एम्प्लॉय इन ई? 28 पर जाएंगे। 28 पंजे 140 होता है। 10 आ गया 108। 28 चौके 92। 54। कुछ गलत कर दिया ना। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ टेक एम्प्लॉयज इन ए सी एंड डी टुगेदर इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल एम्प्लॉयज इन ई? ए सी डी टेक पूछे गए ना। ए सी डी, ए सी और डी। 1200 और 2100 कितने हो गए? 3300, ठीक है। 3300 और 1200 4500, 4500 और 24। इसका एवरेज निकालेंगे। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24। 1508 है यार ये। 15 फंड टोटल टेक। ओके, टेक एम्प्लॉयज ही पूछा गया ना। ठीक है ठीक है। 7 से करेंगे। 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 पंजे 35। तो 215% समथिंग होगी। ये देखते हैं फॉर द रेशियो ऑफ नॉन टेक एम्प्लॉयज who got promotion to who did not got promotion in 3 in office D। ऑफिस डी के नॉन टेक एम्प्लॉयज 476 हैं। प्रमोशन 9 प्रमोशन 3 और 4 है। 7 से करेंगे। 7 6 42 होते हैं ना। 7 अट्ठे 56। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ नॉन टेक एम्प्लॉय हु डिड नॉट गेट प्रमोशन फ्रॉम डी। 4 अट्ठे 32, 4 6 24, 272 इज हाउ मच लेस देन द टेक एम्प्लॉयज फ्रॉम मी। 10 में से 2 गया 8, 9 में से 7 गया 2, 528, सॉरी 428। कैरी भी ली थी ना। एक मिनट टाइम देख लेता हूँ मैं। सही चल रहा है ना टाइम? सही है बिल्कुल। ओह। फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ नॉन टेक एम्प्लॉयज इन बी एंड सी टुगेदर। नॉन टेक एम्प्लॉयज इन बी एंड सी 2400 टू द नंबर ऑफ टेक एम्प्लॉयज सी एंड डी। तो ये किस पर जाएगा? पहले 12 14 6 और 7 भी अप्रॉक्सीमेशन पड़ी हुई है ना। अच्छी बात है। यहाँ करते हैं जितने अप्रॉक्सीमेशन हो सकती है। ये क्या है? 13 69 किसका होता है? 11 एक मिनट। 40 का होता है 40 का 1600 होता है ना। सॉरी यार, 40 का कितना होता है? 1600। 35 का कितना होता है? 25 12 25। तो ये 37 का है ना। 13 69। 20 25 किसका होगा? 20 25 होगा 45 का।
माइनस के 8 आ जाएंगे ये। माइनस के 8 यहाँ पर क्या है 2197, किसका होता है 13 का 2199, 13 का होता है तो 5 आए, 13 में से 8 जोड़ेंगे 21 आ जाएगा। ये है 360 और 80%। 80% मीन्स 4/5 और 1120। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 चौके 24, 4 चौके 16, 22 चौके 88, 896। 896 ये माइनस क्या है ना 360 में पहले 840 जोड़ते हैं, 1200 में फिर ये घटा देते हैं 404। क्या गलती कर दी अब, ये तो 4/5 ही है 80%। ये 1120 ही है। 5 दूनी 10, ठीक है 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 4 चौके 16, 4 दूनी 8 एक 9, 4 दूनी 8, 896 मीन्स 360 माइनस 896 एक्स माइनस 840। 840 इधर आके इसमें प्लस हो जाएगा, 0 6 4 10, 3 और 8 11 और 1200। 1200 में से जब हम 896 माइनस करेंगे तो ये 404 आ रहा है। क्या गलती कर रहा हूँ मैं, क्या गलती कर रहा हूँ। चलो बाद में देखते हैं इसको। ये बच्चे यार पतंग चढ़ा रहे हैं, ठीक है उसकी आवाज़ आ रही है। और कल बसंत पंचमी भी है, उसके लिए आपको ढेर सारी मुबारकें, ठीक है। अगली बसंत पंचमी तक यार जॉब लगी हो तो बहुत अच्छा होगा। दोबारा टॉपिक पर ही आते हैं। 28 का है 784, 20 का है 400, तो ये 1184 हो गया। 1184 में 80 माइनस करेंगे तो 4 ही आ जाएगा। 4 का कितना होता है 16। यह 4000 डिवाइडेड बाय 10 तो 400। ये कितना है 25 इंटू 12 ना, 12 पंजा 60, 12 दूनी 300, तो ये 100 आ गया। 100 किसका होता है 10 का। ये क्या है 48 इंटू 6, 6 अट्ठे 48, 6 चौके 24, 4 28, 288। ये 11 का 5 55, 233। 33 अच्छा हो गया है। अब मैं पहले इसको देख लेते हैं एक बार फिर से, थोड़े से साफ पेज में बनता है तो ठीक है, नहीं तो फिर ये है 360, ठीक है माइनस 80%, 80/100 इंटू 1120 और x माइनस 840। 0 से 0 कैंसिल, ठीक है 0 से 0 कैंसिल, 8 आ गया ये। तो फिर 360, 8 दूनी 16, 8 एकम 8 और 896। इधर ये ले आएंगे तो प्लस के 840, ये x आ गया। अब 840 और 360 पूरे 1200, 1200 में से 896 माइनस करेंगे 404 आ रहा है यार। ओके तीन, एक मिनट, यहाँ से कैरी ली थी ना, यहाँ भी ली कैरी। पता नहीं यार क्या हो रहा है, ये नहीं बन पा रहा है मुझसे। अब ऐसे करते हैं, रीजनिंग का ही कर लेते हैं ये। कितने इसके 7 क्वेश्चन है। ओके यही बनाकर देखते हैं। 7 persons है सेट इन अ लीनियर रो, ऑल ऑफ देम फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। ओके ईच ऑफ देम, ठीक है। द वन हु लाइक्स ग्रीन सिट्स थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एंड। ऐसे आपको भी शिफ्ट मार जाना है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि 1 2 3 4 5 6 7, 5 6 7, अगर आपको लगता है कि वहाँ पर आसान है ज़्यादा, वो मैं कर पाऊँगा, तो ऐसे आप कर सकते हैं। द वन हु लाइक्स ग्रीन सिट्स थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एंड, 2 person sit between R and the one who like green। 2 person sit between R and one who like green। Okay, S is the only neighbor of P। S is the only neighbor of P। S is the only neighbor of P।
The one who likes white sits second to the left of S. तो ये क्या केस, ठीक है। More than 2% sit between V and U, ठीक है। Q sits adjacent to U. The one who likes pink sits fourth to the right of T. The one who likes black sits between P and U. तो ब्लैक यही होगा, फिर U यही होगा, U के साथ Q है तो V यही होगा। फिर T और पिंक में 3 लोग हैं तो पिंक यही होगा। फिर नाइदर V नॉर T लाइक्स ब्लू, ठीक है, तो ब्लू इसे पसंद करा देते हैं। द वन हु लाइक्स रेड सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ वन हु लाइक्स येलो, बन गया। हु अमंग द फॉलोइंग सेट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ T? V। हाउ मेनी पर्सन सेट बिटवीन V एंड S? 1 2 3 4। Who among the following likes yellow color? T. Which among the following statement is not true? Okay, not true. V sits at the extreme left and ठीक है ये। More than 3% set to the left of S, ठीक है ये। S likes black color, ये भी ठीक है। Q sits adjacent to T, ये भी ठीक है। P likes green color, ये गलत है। ओके, P U T Q R, P U T Q R, P है फिर एंड पर बैठी हुई है। अब इसको देखते हैं ये क्या है। इफ इन द गिवन नंबर क्या है? 863516427542, ठीक है। 1 is added to the odd digits and 1 is subtracted to the even digits, then what will the sum of digits which are fourth from the right hand? 1 2 3 4 and eighth from the left hand? 1 2 3 4 5 6 7 8th। तो odd में 11 हो गया। If we form a 4-letter meaningful word, limitation है, limitation, ठीक है। 3rd 5th 9th and 10th, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, 3rd 5th 9 and 10, MTON। तो क्या बन सकता है इसका? मॉन्ट, नोमट तो कोई नहीं होता। टोम, टोनम, जो खाई तो कोई नहीं देख रहा। टोमन, नोटम, मटन, मटन में मटन होगा, मटन एक वो ऐसे होगा ना, मटन। आई थिंक कोई नहीं है। ये तो हो गए सभी के सभी। इसमें देख लेते हैं अगर कोई हो सकता है तो। ये नहीं किया ना हमने। अच्छा, ये एक ही है, यही बना लेते हैं फिर। नहीं ये, ओके ओके, वो थी केसलेट डी है ना। ये देख लेते हैं। P Q R 10, P Q R together can do a work in 10 days while Q alone can do is 3 days. If P alone take 16 days less than R, then अगर मैं यहाँ पर रखूँ तो अगर इसकी 3 है, इसकी एफिशिएंसी 3 है, तो P और R 7 है, ठीक है। P alone takes 16 days less than R, if P alone takes 16 days less than R, तो टू पी, ये कितना हो गया? 16 और 7 नहीं यार, कैसे करेंगे यार इसको? तो टाइम तो हो ही गया लगभग। तो ये था गाइज मेरा टेस्ट RRBPO का। आज टाइम ने ख़राब नहीं किया। अड्डा 247 वालों का थैंक यू करना चाहता हूँ कि
ऐसा नहीं हुआ तो आप अपना ज़रूर दीजिएगा ये टेस्ट अगर आपके पास है। एंड हैप्पी बसंत पंचमी अगेन। ठीक है, और बस आज के लिए फिर इतना ही। और देखते हैं कितना रहा, चलते हैं फिर, काफ़ी टाइम हो गया है। ओके, तो 59 अटेम्प्ट किए ना, 59 ही हो पाया ना अटेम्प्ट, फिर भी 50 स्कोर रहा, 7 रॉन्ग हो गए। एक मिनट देख लेते हैं, 7 कौन से गलत हो गए, 7 गलत हो गए भाई। रीजनिंग में है ना, एक यहाँ पर गलत हो गया। जब ऐसे गलत होते हैं ना 7 7, तो काम खराब हो जाता है यार। रीजनिंग में ही 7 के 7 गलत है, इतनी कैसे खराब हो गई, 2 तो इसमें ही गलत हो गए भाई। ये भी गलत है, चेक करना पड़ेगा इसको, ऐसे नहीं बात बनेगी। पहले 8% है सेट अराउंड स्क्वायर टेबल, देखते हैं कैसे ये गलत हुआ, क्या मिस्टेक की हमने। यहाँ किया था ना। ये बना था हमारा, ये कौन सा गलत हुआ, सेकंड वाला। क्या पूछा गया है, ट्रू कौन सा है ना। तो नो वन सेट बिटवीन जी एंड डी व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ जी, शिट मैन, सिली मिस्टेक। यहाँ तक ही पड़ा सिर्फ, चलो कोई बात नहीं, ये देख लेते हैं। इफ एम एंड पी आर ओल्डर देन, एम और पी का तो मैंने थोड़ा सा अंदाज़ा तो सही लगाया था। एम और पी अगर ओल्डर हैं, पहले मैंने ऐसे गिना 1 2 3 4 5 6, तो 6 तो नहीं, तो कैसे ये 4 कैसे हैं, एम एंड पी आर ओल्डर देन। अच्छा, अगर एम और पी ओल्डर देन एस, पता नहीं ये कैसे कह रहे हैं सही गलत। ये तो कोई पक्का वो प्रॉब्लम है, इसको दोबारा बनाकर देखते हैं। ओनली अ फ्यू रेन इज वाटर, ऑल वाटर इज सी, नो सी इज ड्रॉप्स, सम रेन इज नॉट ड्रॉप्स, कुछ रेन ड्रॉप्स नहीं है, कुछ रेन ड्रॉप्स नहीं है, मैंने ये नहीं बोला था। ऑल सी बीइंग रेन इज अ पॉसिबिलिटी, ये भी मैंने नो बोला था। नाइदर नॉट बोला था ना मैंने। अच्छा, ओनली कंक्लूजन पहला मैंने ठीक बोला था कि सम रेन इज नॉट ड्रॉप, कुछ रेन ड्रॉप्स नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है, दोनों के दोनों ठीक हैं। दूसरा कैसे ठीक है, ऑल सी बीइंग रेन, पूरे सी रेन। यार ये डब्ल्यू थोड़ा ना आ सकता है इसमें, समझ नहीं लगी कुछ। ओके ओके भाई साहब, इसका प्रतिबंध लगा हुआ है ना, ऐसे ऐसे थोड़ा ना लगा है। तो ऐसे सिली मिस्टेक्स होती हैं गाइस, देख सकते हैं आप लाइव। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इस चैनल पर। गाइस प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा यार वीडियो को। ये भी देख लेते हैं, ऑल फ्रूट्स आर ग्रेप्स, ओनली अ फ्यू फ्रूट्स आर मैंगो, ऑल फ्रूट्स आर grapes, only few fruits are mango, no apple is mango, all grapes being mango is a possibility, all grapes being mango, मैंने बोला था कि नहीं हो सकती, क्योंकि इसका कुछ एरिया तो नहीं जा सकता ना। मैंने पहला तो ठीक है, सम फ्रूट इज़ नॉट एप्पल, कुछ फ्रूट एप्पल नहीं है, तो इसका देख के यार मैंने बोला था कि कुछ फ्रूट एप्पल नहीं है। हाँ, मैंने नाइदर नॉर लगा दिया, ओहो, ये तो मिस्टेक थी यार मेरी, मानता हूँ। अब ये कैसे गलत हुआ भाई, इसका देखना है मुझको, ये तो अच्छे से देखा भी था। कहाँ किया था ये, एक मिनट। कहाँ किया था यार,
पता नहीं कहाँ किया हुआ है ये। मैं एक बार फिर से देख लेते हैं, कोई बात नहीं। 863, 516, ठीक है, 427 और 542। क्या बोल रहे थे कि 1 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द इवन डिजिट एंड 1 is added to the odd digit, and what will the sum of the digits which is 4th from the right hand, तो 7 है, and 8th from the left hand, 3 3 6 3 और, तो ये क्या होगी? इवन ऑड में एक बढ़ेगा, इसमें एक घटाकर, फिर भी मैंने इसमें भी लगता है प्लस कर दिया। इसको कहते हैं जो जल्दी से, ये यार गलत हो गया भाई साहब। डी से जेड देखना है, ये क्या था? बहुत ही, सेकंड भी ठीक है, सेकंड कैसे ठीक है? यू से एन, यू से पी गए, ठीक है, पी से एन हो। बहुत ही सिंपल सिंपल मिस्टेक्स की है जो होनी नहीं चाहिए थी वैसे। एफेज, ये भी गलत हो गया, ये तो यार देखे हुए क्वेश्चन था। ये किया ना, हाँ यही है। इफेज क्या बोला गया था यार? इफेज रिलेटेड टू बी, in the similar way E is related to H, then G is related to C होगा यार। फाइनल अरेंजमेंट क्या है? एफ ए डी, बी जी ई, सी और एच। इफ ए इज रिलेटेड टू बी, इन द सिमिलर वे ई इज रिलेटेड टू एच, हाँ, देन यार ये कैसे हो सकता है? जी का डी कैसे? कमाल है भाई। जी ऊपर भी तो हो सकता है ना। जी इज रिलेटेड, इफ ए इज रिलेटेड टू बी, अगर बोल रहे हैं ए बी से रिलेट करता है और ई एच से रिलेट करता है, तो पूछा क्या गया है कि ई एच से रिलेट करता है, तो जी से रिलेट कौन? ओके, तो कैसे खेला गया है लैंग्वेज के साथ। सो गाइज, इनको बड़े आपको सीरियसली लेना है जो रॉन्ग क्वेश्चंस है, क्योंकि ये आपका काम खराब कर सकते हैं बहुत ज़्यादा। जैसे मैंने 59 अटैम्प्ट आई थिंक किए ना, तो 59 में से 7 तो गलत चल गए। सिलेक्शन की राह में ये रोड़ा अटकाएंगे। इनको पहली प्रायोरिटी दो जो गलत हो रहे हैं, जो नहीं हुए वो तो चलो ठीक है, लेकिन गलत क्यों हुए यार? टाइम देने के बावजूद वो गलत हो जाता है थोड़ा सा। इसमें मैं 19 ही कर पाया, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया होगा, यहाँ एक आध क्वेश्चन बना नहीं। ये भी देखते हैं ये क्यों नहीं बना। 240 कैसे होगा ये? इतना टाइम दिया इसको। 1200 में से 960, हाँ ये तो प्लस हो जाएगा ना, 1240। ओके, ये 1200 बनेगा। मैं 1120 लिख रहा था बार बार, देख लो 1200 बनेगा ये। सो गाइज, ये था हमारा टेस्ट विद फुल क्या बोल सकते हैं हम, एनालिसिस। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।